میرے چچا کو عجیب سے دورے پڑتے اور جب تک میری اماں کمرہ بند کر کے ان کو دم نہ کرتی وہ ٹھیک نہ ہوتے۔ میں حیران تھی کہ صرف میری اماں کے دم سے ہی کیوں چچا ٹھیک ہوتے ہیں، جبکہ میری اماں کوئی پیرنی بھی نہیں ہے۔ ایک دن جیسے ہی چچا کو دورہ پڑا میں ان کے کمرے میں چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور میری روح فنا ہو گئی جب شاہ نواز، آج تو کھانا تم نے بہت ہی کم کھایا ہے بیٹا، کیا بات ہے؟ یہ لو کھیر کھاؤ، آج میں نے خاص طور پر تمہارے لیے کھیر بنائی ہے۔ دادو کھیر کا ڈونگا چچا کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ چچا یہ کہتے ہوئے دسترخوان سے اٹھ گئے کہ اماں طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج۔ دادو نے کہا کیا بات ہے بیٹا، کیا آج پھر طبیعت خراب ہے؟ چچا نے کہا جی اماں، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ دادو نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولی ہائے اللہ خیر کرے۔ رضوانہ امی نے فوراً جواب دیا جی امی۔ دادو نے کہا رضوانہ دیکھ شاہ نواز کی طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے۔ امی نے دادو سے کہا پریشان کیوں ہوتی ہیں امی، میں ہوں نا، آپ بے فکر ہو جائیں، شاہ نواز بھائی میرے بھائی کی طرح ہی تو ہیں۔ دادو نے کہا خوش رہو رضوانہ، یہ صرف تمہاری وجہ سے ہی ہے کہ شاہ نواز کی طبیعت بگڑتی ہے تو تمہارے دم سے ٹھیک ہو جاتی ہے، ورنہ ہم کہاں کہاں اسے لے کر دھکے کھاتے۔ مجھے بس ایک فکر کھائے جا رہی تھی کہ امی نے چونک کر دادو کی طرف دیکھا اور بولی وہ کیا امی جان؟ دادو نے کہا شاہ نواز تمہارے دم سے ٹھیک تو ہو جاتا ہے مگر اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ امی نے کہا اس کی آپ فکر نہ کریں، میں شاہ نواز بھائی کی خوراک پر پوری توجہ دے رہی ہوں، دیکھیے گا جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی لمحے امی مجھ سے مخاطب ہوئیں سائرہ بیٹا کھانا کھا لیا؟ تو سونے کی تیاری کرو، صبح کالج بھی جانا ہے۔ میں بھی فوراً دسترخوان سے اٹھی اور بولی جی امی بالکل، میں نماز پڑھ کر جلدی سو جاؤں گی کیونکہ صبح میں نے کالج جلدی پہنچنا ہے۔ میرا نام سائرہ ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ بہاولپور میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں میرے ابو شاہ میر اور میری امی رضوانہ، میری دادو اور میرے چچا شاہ نواز، ہم سب اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میرے ابو کے کپڑے کی دکان ہے جس کی آمدن سے ہمارے گھر کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ میرے ابو اور چچا صرف 2 بھائی ہیں، ان کی کوئی بہن نہیں ہے۔ کچھ دن ہوئے کہ میرا فرسٹ ایئر میں داخلہ ہوا، میں 8ویں جماعت میں تھی۔ میرے چچا اس وقت سے بیمار ہیں اور تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری ماں کسی پیرنی سے کم نہیں ہے، کیونکہ ان کے دم سے چچا فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن چچا کو بیماری کیا ہے یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا، بس انہیں عجیب سے دورے پڑتے ہیں، امی دم کرتی ہیں اور وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ میں خود حیران تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ گلی محلے سے جب دم کروانے آتا کوئی تو امی اسے دم کرنے سے انکار کر دیتی۔ آج پھر چچا کی طبیعت بہت خراب تھی اور دادو کی صحت کو لے کر شدید پریشان تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو جلدی سے ٹھیک کر دے۔ نہ جانے میرے شاہ نواز کو کس کی نظر لگ جاتی ہے۔ دادی نے روتے ہوئے چچا کو آواز دی بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو اماں نے جلدی سے دادی کو ٹوک دیا کہ امی آپ فکر نہ کریں نا، میں ہوں نا، بھائی کو دم کر دیا ہے اور اب اس کی طبیعت بہتر ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سونے دیں۔ اماں نے دادی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں کمرے سے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی اماں اور دادی چچا کے کمرے سے باہر آئیں تو میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں خود پریشان تھی کہ آخر یہ کیسا دم تھا، جو سوال یہ تھا کہ آخر چچا جان کو بیماری کیا تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی، گھر کا گیٹ کھلا تھا، میں کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ گھر میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اگر گھر پر کوئی نہیں ہے تو گیٹ کیوں کھلا ہوا ہے؟ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ امی کمرے میں تھی اور کہہ رہی تھی نکل جاؤ میرے کمرے سے، تمہاری زندگی میری محتاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سسک کر مر جاؤ۔ امی نے کچھ اور بھی کہا جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، میں نے دھڑ سے دروازہ کھولا۔ میں تو حیران رہ گئی، اندر چچا جان کھڑے تھے۔ امی اور چچا جان دونوں ہی مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ چچا جان کچھ کہے بنا کمرے سے اور پھر گھر سے ہی باہر چلے گئے۔ میں نے کہا امی آپ چچا جان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کر رہی تھی؟ امی نے مسکرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں سائرہ بیٹا، وہ دراصل وہی سسرال اور مائکے والوں کے اسٹیٹس کو لے کر ایک روایتی بحث چلتی رہتی ہے، اس پر تمہارے چچا اور میری بحث ہو گئی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ تم کمرے میں چلو، یونیفارم چینج کرو، میں تمہارے لیے ایک کھانا لاتی ہوں۔ میں نے کہا لیکن امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا سائرہ تم بہت چھوٹی ہو، اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں اپنے کمرے میں آئی۔ کیا چچا جان اور امی کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی تھی؟ لیکن یہ کیسی ناراضگی تھی جس کا کسی کو علم نہیں تھا؟
मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। आज ना तो मेरा पढ़ाई में दिल लग रहा था और ना ही मैंने रात का खाना खाया। पूरे दिन का थका हुआ दिमाग तकिए पर सर रखते ही मुझे नींद आ गई। सुबह आँख खुली, मैं जल्दी से उठी क्योंकि कॉलेज जाना था। मैं कमरे से बाहर आई तो अम्मी ने कहा तुमने रात को खाना भी नहीं खाया और सो गई। मैंने बहुत बार तुम्हें जगाने की कोशिश की मगर तुम नहीं जागी। मैंने कहा जी अम्मी जान, जाने क्यों मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई थी और वैसे भी मुझे भूख नहीं थी, बस इसीलिए रात को बगैर खाना खाए जल्दी सो गई। अम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, रात को भी तुमने खाना नहीं खाया था, अब जल्दी से जाकर अपने और अब्बू के लिए नाश्ता बनाओ, मैं कपड़े इस्त्री करके आती हूँ। मैं जल्दी से किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी और अचानक से मुझे चचा का ख्याल आया। मैं अम्मी से आंख बचाकर चचा के कमरे की तरफ गई। मैंने चचा के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो चचा अपने कमरे में खड़े बालों में कंघा कर रहे थे। मैंने चचा को आवाज दी, चचा जान अब आपकी तबीयत कैसी है? चचा मेरे पास आए और मेरी तरफ बड़े प्यार से देखा और कहने लगे सायरा बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने चचा से कहा जी ठीक है, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आप भी अपने कमरे से बाहर आ जाएं और हमारे साथ मिलकर नाश्ता करना। इतने में अम्मी ने मुझे गुस्से से आवाज दी, तुम्हें जो काम कहा जाए बस वही किया करो। अम्मी को बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैं जल्दी से दौड़कर किचन में चली गई। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी अम्मी मुझे चचा के पास खड़ा हुआ देखती हैं या बात करते हुए देखती हैं तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं कई बार अम्मी से नाराज भी हुई कि चचा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो आपको बुरा क्यों लगता है और आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? चचा तो मेरे लिए मेरे अब्बू की तरह हैं। तो हर बार अम्मी मुझे ये कहती कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम अपने चचा से दूर रहा करो और जितना कहा जाए वही सुना करो और वही किया करो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, समझ गई? अम्मी तो बात ऐसे खत्म करती और फिर पूछने का हौसला ही ना होता। अब्बू ने कहा सायरा बेटा जल्दी करो, मैंने तुम्हें कॉलेज छोड़कर दुकान पर भी जाना है। मैंने डबल रोटी के 2 स्लाइस उठाए और आधा कप चाय लेकर जल्दी से नाश्ता मुकम्मल किया। मैंने और अब्बू ने दादी से दुआ ली और खुदा हाफिज कहकर घर से निकल पड़े। अब्बू ने मुझे कॉलेज छोड़ा और फिर खुद अपनी दुकान की तरफ चले गए। ब्रेक टाइम में कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी कि मेरा एक क्लास फेलो जिसका नाम तुफैल था, तुफैल मेरे मोहल्ले का भी था, मेरे पास आया और बोला कैसी हो सायरा? मैंने कहा ठीक हूँ। वो बोला सुना है तुम्हारी अम्मी पीरनी है, कई सालों से तुम्हारे चचा की तबीयत खराब है, कहीं से उन्हें आराम नहीं आता, लेकिन जैसे ही तुम्हारी अम्मी उन पर दम करती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैंने चिढ़कर कहा तुम्हें सब कुछ इल्म है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसी दौरान एक और क्लास फेलो तुफैल के पास आकर खड़ा हो गया। तुफैल बोला दरअसल मैं चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अम्मी मुझ पर भी कोई ऐसा दम करे कि मैं पढ़ने लग जाऊं। ये सुनकर तुफैल का दोस्त कहका लगाकर हंस पड़ा। मैंने अपना बैग उठाया और खड़ी हो गई। तुफैल बोला कहाँ जा रही हो? मुझे सिर्फ तुम्हारी सिफारिश चाहिए क्योंकि तुम्हारी अम्मी सिवाय तुम्हारे चचा के किसी और को दम नहीं करती, इसीलिए कह रहा हूँ। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा सायरा प्लीज मेरी सिफारिश कर दो ना। मुझे गुस्सा तो शदीद आया लेकिन मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। मैं अपना बैग लिए वहां से चल पड़ी। तुफैल और उसका दोस्त कहके लगाकर हंस पड़े। आज तो मुझे शदीद गुस्सा आया। बदतमीज तुफैल की हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। और आज तो मैं जरूर अम्मी से पूछूंगी कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है घर में। कोई बताता क्यों नहीं कि चचा को बीमारी क्या है जिसके लिए मेरी अम्मी पीरनी बनी फिरती हैं और मेरी अम्मी ही क्यों बनी हुई हैं। मैं कॉलेज से घर पहुंची। अम्मी किचन समेटने में मसरूफ थी। मैं डायरेक्ट किचन में चली गई। अम्मी ने मुझे देखा तो बोली क्या बात है सायरा, तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है? मैं चिल्लाई। अम्मी गुस्से से सुर्ख हो रहा है, गुस्से से। अम्मी ने कहा सायरा ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? मैंने कहा अम्मी आपको मालूम है मोहल्ले वाले मुझे कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी पीरनी है तो हमें क्यों नहीं दम करती, वो तुम्हारे चचा को ही क्यों दम करती हैं। अम्मी ने हाथ में शीशे का ग्लास पकड़ा हुआ था। ये सुनते ही अम्मी के हाथ से शीशे का ग्लास नीचे गिरा और टूट गया। वो बोली क्या, कौन कह रहा है ये बकवास? मैंने कहा कौन नहीं कह रहा अम्मी, जाएं जाकर पूछ ले मोहल्ले वालों से कि कौन कौन नहीं कर रहा ये सुनकर अम्मी दादो भी वहां पहुंच गई और बोली हाँ रिजवाना बुरा मत मानना, ये सवाल कई बार मेरे दिमाग में भी आया। वैसे तो तुम शाहनवाज को मुंह नहीं लगाती हो, लेकिन जब वो ठीक होता है तो तुम्हारे दम से ही होता है। कमाल है। ये सुनते ही अम्मी आग बगूला हो गई और बाकायदा चिल्लाने लगी अम्मी एक तो मैं आपके बेटे के साथ हमदर्दी कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे पर शक कर रही हैं। मेरी खिदमत का आप मुझे ये सिला दे रही हैं।
अब ये शोर शराबा सुनकर मैं पांव पटकती कमरे से चली गई। इसी असना में अब्बू घर चले आए। अब्बू ने कहा, क्या बात है भाई, कैसा शोर है? रिजवाना, तुम्हारी आवाज घर से बाहर जा रही है। दादू ने कहा, तुम खुद ही पूछ लो बेटा, मैंने पूछा तो ऐसा ही जवाब मिलेगा जैसा तुम बाहर से सुनते आ रहे हो। आज मैं दोपहर से ही अपने कमरे में बंद थी, मैंने खाना भी नहीं खाया। रात हुई तो अम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, सायरा, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, प्लीज उठ जाओ और खाना खा लो। खाने से कैसी नाराजगी? मैंने कहा, प्लीज अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दें। इसी असना में बाहर से आवाजें आने लगी। ये तो चचा जान थे, वो अम्मी को बुला रहे थे। रिजवाना, रिजवाना कहाँ हो, बाहर आओ, देखो मुझे, अब मुझे तुम्हारे दम की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? ये सुनते ही मैं और अम्मी कमरे से बाहर भागे। दादू भी बाहर सहन में आ गई। दादू ने कहा, शाहनवाज, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इतने में चचा जान की नजर अम्मी पर पड़ी। चचा जान झूमते हुए अम्मी के करीब आए। उन्होंने अम्मी को बाजू से पकड़ा और बोले, देखो रिजवाना, आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी ने चचा को धक्का दिया और बोली, होश करो शाहनवाज, ये कैसी बदतमीजी है? फिर अम्मी दादू से मुखातिब हुई, देख रही हैं आप अपने बेटे की असलियत, इसे बिल्कुल इल्म नहीं है कि इसने भाभी के साथ कैसे बात करनी है। चचा जान जो अम्मी के धक्का देने की वजह से नीचे गिरे पड़े थे, दादू ने जल्दी से उनको उठाया और बोली, शाहनवाज, तुम कमरे में चलो और बहू बस कर दो, इस बात को यहीं खत्म करो। ये कहते हुए दादू चचा जान को उनके कमरे में ले गई। अम्मी गुस्से में भरी हुई मेरे कमरे में आई। मैं भी अम्मी के पीछे कमरे में चली आई। अम्मी ने गुस्से में कमरे में टहलने लगी। इसी दौरान दादी अंदर आई और बोली, रिजवाना, जो हुआ इस बात को यहीं खत्म कर दो और शाहनवाज को कुछ न बताना, वरना वो यूं ही गुस्सा करेगा। ये कहकर दादू कमरे से चली गई और अम्मी हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। अम्मी ने कहा, देख लिया तुमने अपनी दादी को, इस बात का पता तो तुम्हारे बाप को जरूर चलेगा, लेकिन मेरे तरीके से। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाह रही हैं। इस वाक़े के ठीक 10 दिन के बाद दादी पड़ोस में एक शादी में शिरकत के लिए गई हुई थी। अभी भी दादी के साथ ही गए हुए थे अब्बू। वलीमे का फंक्शन था। अम्मी ने जाने से मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी भी अम्मी ने कॉलेज से छुट्टी कराई शादी में जाने के लिए, लेकिन बाद में जाने नहीं दिया कि मैं घर के कामकाज में उनका हाथ बटाऊं। ठीक 2 बजे अम्मी मेरे कमरे में आई। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। अम्मी ने कहा, सारा जल्दी आओ मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ अम्मी? वो बोली, सवाल मत करो, जल्दी आओ, तुम्हें थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अम्मी मुझे कमरे में ले आई और मुझे पलंग के नीचे छुपने का कहा और बोली, जब तक मैं न कहूँ बाहर ना आना। मैं खुद बहुत परेशान थी, लेकिन अम्मी ने ये कहकर चुप करा दिया कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज तुम्हें मिलने वाले हैं। मैं पलंग के नीचे छुप गई। इतने में बाहर के दरवाजे पर घंटी बजी और अम्मी भागती हुई गई। कुछ देर बाद अम्मी के साथ चचा जान कमरे में आ गए। चचा जान पलंग पर बैठे और बोले, रिजवाना, आज मैं तुमसे फाइनल बात करने आया हूँ। चचा की आवाज़ से लग रहा था कि उनकी तबीयत आज फिर ठीक नहीं है। अम्मी ने कहा, मैं पानी लेकर आती हूँ और साथ तुम्हारा दम भी, इसके बाद सारी बातें करते हैं। ये कहकर अम्मी कमरे से चली गई। मैं परेशान थी कि आखिर ये क्या माजरा है। मेरे लिए तो अम्मी और चचा दोनों शख्सियत ही पुरस्कार बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद उस कमरे में अम्मी वापस आईं। पानी से भरा हुआ ग्लास साइड पर टेबल पर रखा और बोली, शाहनवाज, इस घर में अब या तो तुम रह सकते हो या मैं रह सकती हूँ। चचा ने जवाब दिया, इस घर में तो मैं ही रहूंगा। हाँ, अगर तुम इज्जत से जाना चाहती हो तो मुझे मेरी दवाई का पता बता दो कि तुम वो कहाँ से लेकर आती हो, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो याद रखना मैं तुम्हारा जीना अजाब कर दूंगा। ये सुनकर अम्मी ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगी कि तुम सबके सामने अपने जुर्म का एतराफ करो। ये सुनते ही चचा खड़े होकर बोले, अच्छा, मुझे क्या पागल समझा हुआ है? हाँ, अम्मी चिल्लाई, अगर तुमने ये बात सबको खुद ना बताई तो मैं खुद ही चीख चीख कर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। फिर तुम किस मुंह से अपने बड़ी भाई के सामने जाओगे? ये सुनकर चचा ने कहका लगाया और बोले, अच्छा, तो तुम अपने शौहर यानी मेरे बड़े भाई को ये बताओगी कि आज से 4 साल पहले मैं खुद अपने भाई की इज्जत पर डाका डाल चुका हूँ? हाँ, और तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी इस बात पर मेरा भोला सा भाई यकीन कर लेगा? ये सुनते ही मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। और रिजवाना बेगम, तुमने ही इस बात का बदला लेने के लिए मुझे नशे का आदी बनाया है ना, सब जानता हूं मैं। ये कहते ही चचा अम्मी की तरफ बढ़े। उन्होंने अम्मी को बाजू से पकड़ा और बोले, रिजवाना, मेरी दवाई मुझे दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर मैं वही काम दोबारा। अभी चचा ने इतना ही कहा था कि अब्बू कमरे में दाखिल हुए। अब्बू को देखते ही चचा ने अम्मी को छोड़ दिया।
ابو نے ایک जोरदार तमाचा चचा के मुंह पर मारा और बोले, मुझे नहीं इल्म था कि मैं एक सांप को पाल रहा हूं। इतने में दादी भी कमरे में आ गई। अब्बू अम्मी से मुखातिब हुए, अब यकीन आ गया आपको? आपने हमेशा इसके गलत कामों पर पर्दा डाला और इसकी बेजा हिमायत की, जिसका नतीजा ये निकला कि इस बेगैरत शख्स ने अपने ही भाई की इज्जत को अपने पांव तले रोन दिया। इस वाक़े के बाद चचा को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया ताकि उनके नशे की आदत को खत्म कराया जा सके। और जैसे ही चचा ठीक होकर घर आए, अब्बू मुझे और अम्मी को लेकर अलग हो गए।